ادھر حیدرآباد میں ٹنڈو جام اور ٹنڈو فضل ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین اور وائس چیئرمین نے حلف اٹھا لیا ہے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنما راول شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی سندھ کے تمام بڑے شہروں میں کامیابی سے اپنے میئر اور ڈیپٹی میئر لے کر آئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ ہم انشاءاللہ بالکل ان کا ساتھ دیں گے، جہاں پہ ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی ہمیں یقین ہے وہ بھی ہمارا بالکل ساتھ دیں گے، ہمارے ممبرز کا ساتھ دیں گے۔ اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اب ہمارا رورل ایریا جو ہے اربنائز ہو گیا ہے، تو ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس اربنائز ایریا کو اسی طرح کی پرائیورٹی ملے گی جس طرح کی ہر اربن شہر کو ملتی ہے۔ ہماری انشاءاللہ بہت ایک مل کے کام کریں گے اور انشاءاللہ بہت اچھا کام کریں گے۔ حیدرآباد کے لوگوں کی خدمت کرنے میں ہم انشاءاللہ آپ کو آگے نظر آئیں گے۔ اقتصادی میدان سے آپ کو خبر دیں کہ IMF پروگرام حاصل کرنے کی پاکستان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے 30 جون تک کا کیلنڈر جاری کر دیا ہے۔ جاری کیے گئے کیلنڈر میں پاکستان کا نام کہیں بھی نہیں ہے۔ پاکستان کو IMF سے اب امداد ملنا ناممکن ہو گیا ہے۔ IMF کے جاری کردہ کیلنڈر میں 30 جون تک پاکستان کا نام شامل نہیں۔ 20 سے 30 جون کے درمیان کانگو، کیمرون، سربیا، سنگیال اور کوسٹاریکا کے پروگرامز کا جائزہ لیا جائے گا۔ 30 جون کو پاکستان کا موجودہ پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 30 جون تک کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے۔ یونان کشتی حادثے پر ہر آنکھ نم ہے۔ ملک بھر میں یوگ سوگ منایا گیا۔ قومی پرچم سرنگو رہا۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے تشکیل کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہماری معیشت اچھی ہوتی تو یونان جیسے سانحات نہ ہوتے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ درندہ صفت انسانی اسمگلروں کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا۔ غم کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں؟ سانحہ یونان کشتی حادثہ ہر آنکھ نم کر گیا۔ ملک بھر میں سرکاری سطح پر یوم سوگ منایا گیا۔ جاں بحق افراد کے لیے دعا کی گئی۔ ورثاء سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ تمام سرکاری دفاتر میں قومی پرچم سرنگو رہا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ نیشنل پولیس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل احسان صادق کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی نے FIA سے بیرون ملک جانے والوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہماری معیشت اچھی ہوتی تو یونان جیسے سانحات نہ ہوتے۔ روزگار کی تلاش میں جانے والے ہمارے بچے ڈوب گئے۔ یونان کے کوسٹ گارڈ نے ڈوبتے لوگوں کو نہ بچا کر ظلم کیا۔ کل یا پرسوں جو ظلم کیا یونان کی وہاں پہ کوسٹ گارڈز نے کہ جب لوگ ڈوب رہے تھے انہوں نے انٹروین نہیں کیا۔ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت ترین ایکشن ہو۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے سانحے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو یقین دلایا کہ حکومت متاثرین کی ہر قسم کی بھرپور معاونت کرے گی۔ انسانی سمگلروں کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا۔ FIA کو ایجنٹوں کی گرفتاری کے لیے ٹاسک دے دیے گئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ آصف زرداری اور شہباز شریف کے درمیان جھگڑے کا باعث نہیں بننا چاہتا۔ ایسا عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال PCB کے لیے اچھی نہیں ہے۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی PCB نجم سیٹھی کا ٹویٹ، کہتے ہیں کہ وہ ان حالات میں PCB کے چیئرمین شپ کے امیدوار نہیں ہیں۔ تمام اسٹیک ہولڈر کو گڈ لک کہتا ہوں۔ آصف زرداری اور شہباز شریف کے درمیان جھگڑے کا باعث نہیں بننا چاہتا، یہ کہنا ہے نجم سیٹھی کا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان حالات میں PCB کے چیئرمین شپ کے امیدوار نہیں ہیں۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو گڈ لک بھی کہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان کسی جھگڑے کا باعث نہیں بننا چاہتے۔ ایسا عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال PCB کے لیے اچھا نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان حالات میں PCB کے چیئرمین شپ کے امیدوار نہیں ہیں۔ تمام اسٹیک ہولڈر کو گڈ لک۔ شہر قائد اور روشنیوں کے شہر کراچی کی تاریخ میں پہلے جیالے میئر نے حلف اٹھا لیا ہے۔ بینظیر بھٹو زرداری کے صاحبزادے بلاول بھٹو کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں اور انہوں نے جیت کو شہید بینظیر بھٹو کے نام کر دیا۔ کہا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز سے اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ جماعت اسلامی بھی شہر کی بہتری کے لیے مل کر کام کرے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ نو منتخب میئر بیرسٹر مرتضی وہاب ان کے ہمراہ ہیں۔ کراچی کی تاریخ میں پہلا جیالہ میئر بن گیا۔ مرتضی وہاب نے میئر اور سلمان عبداللہ مراد نے ڈیپٹی میئر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ سوائے اس کے جو میرے فرض کی ادائیگی کے مطابق ہو،
मेयर कराची की तकरीब हलफ बर्दारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में तारीखी कामयाबी का जिक्र करते हुए बिलावल आबदीदा हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था 9 मई के वाकयात के बाद जमात इस्लामी का जमान पार्क जाना अफसोसनाक है। जमात कराची पर कब्जे के बजाय मिलकर काम करे। जिन्होंने जिना हाउस पे हमला किया था, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि उन हमलों के बाद हमारा जो जमात इस्लामी के दोस्तों हैं उन्होंने यहाँ से उठ के ज़मान पाक गए थे। मैं तो जमात इस्लामी को एडवाइस करूँगा कि वो सियासी जमातों के साथ मिल के काम करे। नून लीग के साथ ताल्लुकात के सवाल पर बिलावल ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। पीपल्स पार्टी ने ही मुल्क में रहकर सियासत करनी है। नून लीग के साथ मेरा नहीं ख्याल हमारा इख्तलाफात कोई सियासी इख्तलाफात है, इत्तेहाद में है, मिल के हुकूमत में है, लेकिन हमने तो मुसलसल आगे जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही इस मुल्क में रह के सियासत करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, आम इंतखाबात नजदीक हैं, कराची खुद अपने वसाइल से मसाइल हल कर सकता है। नफरत की सियासत रद्द करके 5 साल बाद हमसे जवाब लें कि कराची में क्या हुआ। यहाँ पर आपको हम खबर दें कि खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा 4 माह का बजट आज पेश किया जाएगा। तफसीलात PNN ने हासिल कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक 4 माह के अखराजात के लिए 462 अरब 16 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा, जबकि ग्रेड 17 और इससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का फैसला किया गया है। तनख्वाहों के लिए 192 अरब 97 करोड़ 80 लाख रुपए, पेंशन की मद में 42 अरब 36 करोड़ 10 लाख रुपए की तजवीज़ रखी गई है। आम खबर आपको दें कि खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा 4 माह का बजट आज पेश किया जाएगा। तफसीलात PNN ने हासिल कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक 4 माह के अखराजात के लिए 462 अरब 16 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा, जबकि ग्रेड 17 से उसके ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% का फैसला किया गया है। तनख्वाहों के लिए 192 अरब 97 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पेंशन की मद में 42 अरब 36 करोड़ 10 लाख रुपए की तजवीज़ रखी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के बजट के हवाले से आपको बताएं कि आइंदा 4 माह का बजट आज पेश किया जाएगा, जिसकी तफसीलात PNN ने हासिल कर ली हैं। ज़राए का कहना है कि 4 माह के अखराजात के लिए 462 अरब 16 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया जाएगा। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का फैसला किया गया है। तनख्वाहों के लिए 192 अरब 97 करोड़ 80 लाख रुपए रखे गए हैं, जबकि पेंशन के मद में 42 अरब 36 करोड़ 10 लाख रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा 4 माह का बजट आज पेश किया जाएगा और इस बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया जाएगा। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमीन इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, जबकि ग्रेड 17 और उससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का फैसला किया गया है। इसी वजह से आपको ये भी बताएं कि तनख्वाहों के लिए 192 अरब 97 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। पेंशन की मद में 42 अरब 36 करोड़ 10 लाख रुपए की तजवीज़ दी गई है। 4 माह का ये अरसा है जिसके लिए खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जा रहा है, जिसकी तफसीलात PNN ने हासिल कर ली हैं। और ज़रा ये बता रहे हैं कि 4 माह के अखराजात के लिए 462 अरब 16 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाएगा और ये इजाफा 35% होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर उमैर यासिर। उमैर, बताइएगा कि जो तफसीलात आपने हासिल की हैं, मज़ीद किन किन शोबों में तरक्याती फ़ंड रखे गए हैं और तफसीलात क्या हैं इसकी? जी, ये जो तरक्याती फ़ंड हैं, इसमें जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है उसमें 112 अरब और 11 करोड़ रुपए 90 लाख रुपए रखे गए हैं। और इसके साथ साथ ये 4 माह का अखराजात का बजट है और इसमें 462 अरब रुपए 462 अरब 16 करोड़ रुपए अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं। इसमें इन अखराजात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी कि बंदोबस्ती अजला के लिए और जो कमशुदा कबायली अजला हैं उनके लिए। बंदोबस्ती अजला के लिए 402 अरब 61 करोड़ 70 लाख रुपए, जबकि कबायली अजला के लिए जो तरक्याती बजट है, अखराजात का जो बजट है वो 59 अरब 54 करोड़ 30 लाख रुपए होगा। इसके
साथ साथ जो तनख्वाहों के लिए 192 अरब 97 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि पेंशन की मद में 42 अरब 36 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जो अहम बात है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की है, जिसमें वफाकी हुकूमत की तरह ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के जो सरकारी मुलाजमीन होंगे उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफे की तजवीज़ है, जबकि ग्रेड 17 और उससे ऊपर की मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% जो है वो मुख्तस रखने की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन की पेंशन है उसमें भी 17.5% इजाफे की तजवीज़ भी रखी गई है। जब हम सालाना तरक्याती प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम को भी बंदोबस्ती और कबायली अजला के लिए रखा गया है। ठीक है, कबायली अजला के लिए भी बजट रखा गया है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ पेशावर उमर यासिर, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। उधर हुकूमती इदारे आखिरकार इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुतहरिक हो चुके हैं। यूनान कश्ती हादसे के 5 रोज़ के बाद एजेंट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। FIA ने लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों से 7 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। DG FIA मोहसिन हसन बट की सरबराही में इजलास में कश्ती हादसे के हवाले से रिपोर्ट पेश कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। यूनान कश्ती हादसे को लेकर आखिरकार हुकूमती इदारे हरकत में आ गए। 5 रोज बाद एजेंट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। FIA ने गुजरात से 6 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मरकजी मुलजिम साजिद महमूद को कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकी मुलजिमान को गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट और वजीराबाद से गिरफ्तार किया गया। गुजरात से गिरफ्तार एजेंट 23 लाख रुपए के एवज नौजवानों को बरास्ता यूनान इटली भेजते थे। FIA ने सियालकोट से भी एक इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अजमत ने लापता नौजवान एहसन से 17 लाख रुपए वसूल किए थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो जुल्म किया यूनान की वहां पे कोस्ट गार्ड्स ने कि जब लोग डूब रहे थे उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन एक्शन हो। FIA के डायरेक्टर जनरल मोहसिन हसन बट की सरबराही में अहम इजलास हुआ, जिसमें कश्ती हादसे के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि अब तक 20 से ज्यादा इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। लाहौर और कराची में भी इस सिलसिले में गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। एहतसाब अदालत में बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की 5 लाख के जमानती मुशल्कों के इवज जमानत मंजूर की। इस्लामाबाद की मकामी अदालतों में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, शहरियार खान अफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। शाह महमूद कुरैशी की जमानत में कल तक तोसी की गई। शहरियार खान अफरीदी को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत के सामने पेश किया गया। अदालत ने प्रोसिक्यूटर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए साबिक वफाकी वजीर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस्लामाबाद के एडिशनल एंड सेशन जज ताहिर अब्बास ने साबिक PTI रहनुमा असद उमर और राजा खुरम के खिलाफ दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत में 4 जुलाई तक तोसी कर दी। अदालत में असद उमर का चेयरमैन PTI से सामना भी हुआ। असद उमर ने चेयरमैन PTI को सलाम किया और अपने करीब बैठने का कहा, ताहम चेयरमैन PTI उनके सलाम का जवाब देने के बाद सीधा रोस्ट्रम पर गए।